سب سے پہلے میں اپنے خداوند کی شکر گزار ہوں جو اپنے لوگوں کو طرف طرح سے موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس کے حضور میں آئیں۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی نظر کرم ہے جو اپنے لوگوں پہ کرتا ہے اور موقع فراہم کرتا ہے۔ آئیے ہم آنکھیں بند کریں اور چھوٹی سی دعا کریں خدا کے حضور میں جو ہمیں اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں اس موقع، اس گھڑی کے لیے جو تو نے مجھے آج بخشا کہ میں تیرے حضور میں آئوں اور خداوند تیرے پاک کلام کو بیان کر سکوں۔ خداوند منت کرتی ہوں کہ جب تک میں تیرے قدموں میں کھڑی رہوں، بولوں، اور خداوند تیرا پاک روح میری مت رہنمائی کرے، لفظوں کی ترتیب دینا، خداوند بولنے کی بڑی طاقت ہمت دینا، اور تیرا پاک روح میری مدد حفاظت کرتا رہے، اور جب تک میں تیرے کلام کو بیان کر سکوں خداوند تیرا آسمان کھلا رہے۔ منت فریاد کو سننا قبول کرنا مانگتی ہوں مسیح کے نام سے، آمین۔ متی کی انجیل اس کا 13واں باب 3 سے لے کے 9 تک پڑھیں گے۔ اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیل میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چن لیا، اور کچھ پتریلی زمین پر گرا جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے۔ اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر انہیں دبا لیا، اور کچھ زمین پر گرا اور پھل لائے، اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ یہ کلام جو آج بیان کرنے کو ہوں، یہ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو تمثیلوں میں بیان کرتا تھا، اور اس میں تقریباً اپنے لوگوں کو اس نے بیان کیا ہے، جس میں اس نے تفصیلیں دے کر بیان کیا، اچھی زمین کے لیے، پتھریلی زمین کے لیے، راہ کے کنارے کے لیے۔ یہ اس نے کلام اپنے لوگوں کو سنایا، سکھایا کہ لوگ سمجھیں اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور کلام کو بیان کرنے کے لیے خدا نے اپنے لوگوں کو مخصوص کیا، اور وہ ہیں پاسٹر صاحبان، جن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے چن لیا کہ وہ اس کے کلام کو جگہ جگہ بیان کریں اور لوگ سنیں، اس پہ عمل کریں۔ اور پہلی کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کچھ بیج راہ کے کنارے گرا۔ راہ کے کنارے گرنے والے ایسے ہیں جو خدا کی بادشاہی کا کلام تو سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں، اور جو دلوں میں بویا جاتا ہے، اور جب وہ بویا جاتا ہے تو اس پہ وقتی طور پہ جیسے چرچ میں آتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اور جب بیٹھے ہوتے ہیں پاک کلام بیان کیا جاتا ہے، پاسٹر صاحبان جگہ جگہ جا کر بیان کرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، جب کلیسیا میں بیان کرتے ہیں تو لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اور دل سے قبول کرتے ہیں فوراً۔ اور جب وہ چرچ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کلام کو بھول بھال کر اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور یہ کلام جو انہوں نے سنا ہوتا ہے کیونکہ توجہ نہیں دیتے، دل سے قبول نہیں کرتے، تو وہ ابلیس شریر آ کر اسے چھین کر لے جاتا ہے۔ یہ کلام ہے کہ جو راہ کے کنارے گرتا ہے۔ یہ کلام مطلب ایسے لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے جو قبول کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، چرچ سے باہر نکلتے ہی بھول جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے بیان کیا ہے کہ پتھریلی زمین پر گرا۔ پتھریلی زمین پر جو گرتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور قبول تو کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں پکڑتے، اس لیے کہ ان کی توجہ پوری اپنے خدا کی طرف نہیں ہوتی۔ جب توجہ خدا کی طرف نہیں ہوتی تو یہ سنا ہوا کلام ان کی زندگی میں کام نہیں کرتا، چند روزہ ہے، سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور اس لیے پھر اس خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، نہ وہ سنتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا بھی ان سے پوچھ لیتا ہے نا کہ آج پاک کلام کیا ہوا ہے، تو وہ وقتی طور پہ بتاتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ جڑ ہی نہیں پکڑتے۔ جڑ پکڑیں، پھل لائیں، خدا کے کلام پہ عمل کریں، تب وہ ہر سنڈے ہو یا جمعرات ہو یا کوئی بھی دن چرچ کا رکھا ہوتا ہے تو لوگ ریگولر آتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، جڑ پکڑتے ہیں اور کلام پہ عمل کرتے ہیں، تاکہ ان کی زندگیوں میں خدا اور کام کرے۔ جب وہ
जड़ नहीं पकड़ते तो चंद रोज़े के लिए जैसे कलाम को कबूल किया, सुना इधर, जैसे पंजाबी में बोलते हैं इतलू सुने इतलू कट दिता, भूल भाल गए। और तीसरा जो उसने, ये वो लोग हैं जो खुदा के साथ वफादार नहीं होते, रस्में दुनिया, चर्च में आए सुना और भूल गए, इधर सुना इधर भूल गए। और ये वो लोग हैं जो कबूल तो करते हैं लेकिन खुदा के कलाम को दिल से कबूल नहीं करते, सुनते ज़रूर हैं। इसीलिए उसने कहा कि जिसके कान हो वो सुने। और फिर उसके बाद उसने फरमाया है कि खुदा अपने लोगों से तरह तरह से कलाम करता है, और झाड़ियों में जो गिरता है ये कलाम उनके लिए है कि वो सुनते हैं लेकिन दुनिया की फ़िक्र में लग जाते हैं। और दौलत फरेब जो है, जो कलाम सुनते हैं तो वो सुनते ज़रूर हैं लेकिन जब वो आते हैं सुनते हैं लेकिन उनमें फ़िक्रें, परेशानियां, घरेलू दुनिया की धन दौलत, यानी कि जो लोग संडे को भी ड्यूटी करते हैं, हालांकि खुदा ने ये पाक कलाम में बताया है, मना किया है कि सारा टाइम काम करो लेकिन मेरी इबादत करना ज़रूरी है। तो लोग इस बात को, जो कि खुदा ने अपने मुबारक मुंह से कहा ये कि मेरे कलाम को सुनते हो तो उस पर अमल करो, और खुदा ने यह भी हुक्म दिया कि तुम मेरी इबादत करो तब मैं तुम्हारी रोटी पानी पे बरकत दूंगा। लेकिन लोग संडे के दिन ड्यूटी करने चले जाते हैं, यानी अपनी फ़िक्रों में दबे होते हैं। हम जाएंगे तो दिहाड़ी मिलेगी, हम जाएंगे तो डबल मिलेगी, तो छोड़ो चर्च क्या जाना, 4 पैसे ही होंगे, तो वो चले जाते हैं। लेकिन वो जब खुदा को पीछे छोड़ते हैं तो अपनी ड्यूटियों पे चले जाते हैं और रेगुलर ड्यूटियां करते हैं। कभी कभार नहीं सोचते कि चलो आज हम खुदा के घर में भी जाएं, अपनी और अपने घराने की तंदुरुस्ती के लिए खुदा के आगे मिन्नत करके आएँ। अगर खुदाया तूने हमें इस तेज़ तंदुरुस्ती ना दी होती तो मैं ड्यूटी कैसे करने जाता। मामूली से एक सर में दर्द भी होती है, ये जिस्म में दर्द होती है तो लोग परेशान होके बिस्तरों पे लेट जाते हैं कि दिल ही नहीं चाह रहा है, जिस्म दर्द हो रहा है, सर में दर्द है, इबादत के लिए क्या जाना है। तो ये सब लापरवाही है। दुनिया की फ़िक्रों में, दौलत की फ़िक्र में, घराने की फ़िक्रों में, इधर उधर की परेशानियों में खुदा को पीछे छोड़ देते हैं और किसी बात की परवाह किए बगैर वो अपने उसमें लगे रहते हैं। तो ये होता है कि इन लोगों को जो सुनते हैं तो वो जो झाड़ियों में गिरता है, ये तशबीह दी गई है झाड़ियों से कि वो कलाम को ये फ़िक्रें और फ़रेब, दौलत जो दुनिया की रंग रैलियों में बैठ जाते हैं, बह जाते हैं, ड्यूटियाँ करते हैं, तो उसमें ये होता है कि ये सब चीज़ें उसको आके कलाम को दबा लेती हैं, वो बढ़ने ही नहीं देती। यानी झाड़ियों में गिरा तो वो धूप निकली और उसकी गर्मी से, झाड़ियों के बढ़ जाने से वो पाक कलाम, यानी झाड़ियों से तशबीह दिया गया कि उसे आकर दबा लेता, वो दब जाते हैं और बेफ़ायदा हो जाता है और वो इसी फल देने से रह जाता है, फल नहीं लाता, क्योंकि वो अपनी दुनिया में गुम होता है। क्या पकना है, क्या लाना है, क्या हमारे घर में कुछ है या नहीं है, वो दौलत कमाने के चक्करों में खुदा को पीछे भूल जाते हैं। जब खुदा को भूल जाते हैं तो खुदा भी उन्हें भूल जाता है। जैसे कि लिखा है कि पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही, फिर दुनिया की ये बातें भी तुम्हें मिल जाएंगी। अगर हम खुदा के साथ वफादार होकर चलेंगे, उसके कलाम को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो हमें तो ना अबलीस शैतान कुछ कर सकता है, ना हमसे कलाम छीन सकता है, ना हमें कोई और परेशान कर सकता है, बल्कि खुदा का पाक रूह हमारी मत रहनुमाई करता है। बशर्त के हम वफादार होकर चलते रहें तो हर चीज़ खुदा हमारे लिए मुहैया करता जाएगा और हमारी मुश्किलें भी आसान होती जाएंगी। वक्ती तौर पे अगर कोई परेशानी, मुश्किल आ जाती है इंसान पे, ज़ाहिर हम दुनिया में रहते हैं तो मुश्किल, परेशानियाँ, खुशी, गमी सब कुछ इंसान के साथ है। लेकिन अगर हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो हमें परेशानियों, मुसीबतों से निकाल देने की कुदरत रखता है और निकाल देता है। हमें सिखाता है कि हमें अपने खुदा के साथ वफादारी से चलना है। और उसने जो अच्छी ज़मीन में गिरा तो वो ये है कि वो जो लोग कलाम को सुनते हैं, समझते हैं और फल लाते हैं, तो फल लाने का मतलब ये है कि वफादारी, खुदा के हुक्मों को मानना, उसके साथ रेगुलर चलना, अपनी ज़िंदगी में अपने खुदा को अपना लेना, उसके हुक्मों को मानना। जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे,
हुक्मों को मानने का ये होता है कि दुनिया के साथ साथ अपने खुदा को मत भूलो, उसको अपनी ज़िंदगी में अपना लो, उसकी कलाम को सुनो, रेगुलर संडे को या जो भी दिन ठहराया होता है इबादत में आओ, क्योंकि खुदा के घर में जब आते हैं तो हम अलग अलग से गीत भी गाते हैं, कलाम अलग अलग बयान होता है, खुदा अपने बंदों को इस्तेमाल करता है, वो सिखाते हैं, बताते हैं। और जो लोग नहीं आते या तवज्जो ही नहीं देते तो फिर उनकी ज़िंदगियों में कलाम हो या कोई और बात हो, कोई भी काम नहीं करती। ख़ास कर जब हम खुदा के कलाम पे ध्यान देंगे तो खुदा हमारी मत रहनुमाई करेगा, हर तरह की परेशानियों से निकाल लेगा, हमारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, बशर्ते कि हम उसके हुक्मों को मानें। और जब मानने लगेंगे, कलाम के मुताबिक चलेंगे, तो अच्छी ज़मीन पे गिरने का ये मतलब होता है कि फिर हम फल लाएंगे। कोई 100 गुना फल लाएगा, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, बशर्ते कि हम खुदा के साथ वफादारी से चलते रहें। फिर उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करेगा और हम बढ़ते चले जाएंगे। जब हम खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलेंगे, कुछ देखा देखी नहीं आते कि फ़लाँ ने गया था चर्च में, लोग कम थे, चलो आज हम भी नहीं जाते, ऐसे नहीं होता। खुदा हाज़िरी को मांगता है, कोई दूसरा आए या ना आए, तुम तो खुदा के घर में आओ, अपनी प्रेजेंट दो, अपने खुदा के साथ वफादार रहो। जब हम दूसरों को देखते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने खुदा के साथ वफादार हैं तो उसका हाथ हम पे बढ़ जाता है, वो हमें हर तरह की नेमतों से नवाजता है, परेशानियां दूर करता है। जबकि हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं तो फिर खुदा भी हमें छोड़ देता है। जैसे मैंने बताया है कि लोग संडे को ड्यूटी करते हैं, लोग ये नहीं कहते कि भाई हमने चर्च जाना है, हमें छुट्टी चाहिए, या संडे की बजाय हम फ़लाँ दिन कर लेंगे या डबल कर लेंगे, किसी और दिन बुला लो। लेकिन नहीं, वो कहते नहीं नहीं, चर्च की कोई गल नहीं, असी तो भाई अज तो सानू डबल मिलनी है, असी जाइए। जब जाते हैं तो वो कमाए हुए पैसे हमारे किसी काम के नहीं, इधर आते हैं इधर मिनटों में खर्च हो जाते हैं। जब हम खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे तो खुदा का हाथ हम पर होगा और वो पैसे भी बड़े सुकून से गुजरेंगे, ज़रूरतें भी सारी हमारी पूरी होती जाएंगी और हमारे घर की बचत भी होगी। सिर्फ ये कि खुदा का हाथ हम पे होगा। जब हम खुदा के साथ वफादारी नहीं, तो उसने बोला है कि मैं कमाने वाले को या मज़दूर की उस थैली को जिसमें वो लाकर कमाता है रखता है, उसमें सुराख कर दूंगा। इसलिए कि वो खुदा के साथ अगर वफादार नहीं तो वो कमाई भी किस काम की नहीं। अगर हम थोड़ा कमाते हैं, खुदा का हाथ हम पे है, तो उसमें बहुत बरकत होती है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, हमारे घर की बचत भी होती है। खुदा के घर देने से हम खुदा के शुक्रगुजार होते हैं कि हमने उसमें से दिया है, तो खुदा हमें वो बढ़ा कर दुगना करके लौटाता है, इसलिए कि खुदा हमारी वफादारी से खुश होता है, बशर्ते कि हम वफादार होकर उसके चलते रहें। खुदावंद से हिम्मत ताकत मांगे कि हमें इस कलाम के मुताबिक चलना चाहिए। अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं उसके चर्च आने का, कलाम को सुनने का। वफादारी से उसको सुने, उस कलाम को अपनाएं और उस पर अमल करें। हमारे घर में ये नहीं, हमारे घर में वो नहीं, दुनिया के कामों में लग गए तो वो कलाम भी जाता रहा। अच्छा वो ही है जो अच्छी राह पे गिरा, जो सुनता और उस पर अमल करता है, तो तब जाके वो फल लाता है, बशर्ते कि हम खुदा के साथ वफादारी से चलते रहें। तब जाके खुदावंद हमारे रोटी पानी पे बरकत देता है। उसके हुक्मों को मानना है, उसके साथ वफादारी से चलना है। अगर हम वफादार नहीं हैं, छोटे मोटे हीले बगानों से घर रह गए तो ये कोई फ़ायदा नहीं होता। खुदा वफादारी मांगता है। जैसे हम ड्यूटियों के लिए सुबह हमारी 8 बजे ड्यूटी होती है, हम 7 बजे घर से निकलते हैं और 6 बजे हम उठ जाते हैं कि फटाफट अपनी तैयारी करें, नहाएं धोएं, तैयार हों और टाइम से हम निकल जाएं ताकि हमें गाड़ी भी मिले और हम 8 बजे तक ड्यूटी पे पहुंच जाएं। तो हम खुदा को इन चीज़ों का टाइम नहीं देते। खुदा के घर में अगर 9 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, तो हम 9:30 आते हैं, 9:45 आते हैं, 10:30 आते हैं। तो ये वफादारी नहीं है खुदा के साथ। खुदा वफादारी चाहता है। जिस तरह हम ड्यूटियों पे रेगुलर टाइम से पहुंचते हैं, इस तरह हमें खुदा के घर भी आना चाहिए। ये नहीं कि खुदा को कुछ पता नहीं, वो सब कुछ देखता भी है, उसे सब कुछ पता भी है, लेकिन फिर भी वो मेहरबान है कि अपने लोगों को उनकी गलती टाइम माफ़ कर देता है। लेकिन हम जो खुदा के लोग हैं इस बात को नहीं समझते। कोई बात नहीं पास्टर जी, हल्ला नहीं, लेकिन
पास्टर जी की बातों को नहीं लेना, उन्होंने मसा महसूस किया होता है, वो टाइम का भी बताते हैं, डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं कि लोग रेगुलर हों और चर्च में आए, लेकिन लोग इस बात को अहमियत नहीं देते, वो अपनी मर्ज़ी से ही आते हैं। और इसी तरह फिर खुदा भी उनको अपनी मर्ज़ी से ही देता है, उसका ये वादा है, वो खाने पीने के लिए देता है, ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन वो नहीं जिस तरह के हमें अज़ाफ़ी चाहिए होता है, तो वो खुदा उसके लिए अपना हाथ रोक लेता है। उसका वादा है, उसके लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, क्योंकि उसका ये वादा है कि शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा बंदा भूखा नहीं रह सकता। अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन अपने लोगों को देता है, इसलिए कि उसने ये वादा किया हुआ है। लेकिन हम इंसान होते हुए अपनी रंगरलियों में रहते हैं, मर्ज़ी करते हैं, तो फिर खुदा भी उसी के मुताबिक हमको देता है। एक्स्ट्रा देने का मतलब ये होता है कि जो हमारे ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो वो हमारे पास हमारी बचत होती है। ये खुदा की मेहरबानी होती है कि ज़रूरतें पूरी होने के बावजूद भी हमारे पास बचता है, ये उसकी नज़र करम होती है। अगर हम उसके साथ वफ़ादार हैं तो उसका कभी हाथ हम पे बढ़ जाता है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। अगर हम इसी तरह रहेंगे तो यही मिसाल, ये तमसील जो बताई गई है, समझाई गई है, राह के किनारे वाली, झाड़ियों वाली, अच्छे फल वाली, फिर हमारा हाल भी यही है, क्योंकि हम खुदा के साथ वफ़ादार नहीं। तो चाहिए ये कि हम अपने खुदा के साथ वफ़ादार हो जाएं, ताकि उसका कभी हाथ हम पे बढ़ा रहे, हर ज़रूरत को पूरा हो और हम उसमें मजबूत होते चले जाएं, और अपने खुदा से बिला नांगा दुआ करें। ये भी उसी ने बताया और सिखाया है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और हम लोग ऐसे हैं कि हम खुदा के हजूर में दुआ भी नहीं करते, अपने घरों में भी दुआ नहीं करते, अपने बच्चों को नहीं सिखाते, बल्कि खाया पिया, लेटे उठे बैठे सो गए, खुदा को हर हाल में भूल जाते हैं, किसी बात में उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। जब उसको भूल जाते हैं तो वो भी हमें भूल जाता है। अगर उसके साथ चलना है तो एक ही काम है कि खुदा के हुक्मों को मानो और उसके साथ वफ़ादार होकर अपनी लाइफ गुजारो। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे, आमीन। चलो जी, आओ दुआ करते हैं। खुदावंदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंदा, तूने मेरी मत रहनुमाई की और मैं बोलती रही। खुदावंदा तेरा शुक्र और तारीफ़ हो इस मौके के लिए भी जो तूने मुझे बख्शा है। खुदावंदा तेरा शुक्र और तारीफ़ हो, तू ही तारीफ़, तमजीद और इज़्ज़त के लायक है। हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। खुदावंदा शुक्रगुजार हूँ, तू पूरी इबादत में हमारे साथ रहा, गाने बजाने में मत रहनुमाई की। खुदावंदा साज़-आवाज़ों को मसा दिया, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। खुदावंदा इबादत के शुरू से लेकर एंड तक तू हमारे साथ रहा, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंदा इसी तरह अपने कलाम को पढ़ने की, समझने की, सुनने की तौफीक दे और वफ़ादारी से हम तेरे साथ चलते रहें, तेरा कभी हाथ हम पे बढ़ा रहे, बिला नांगा खुदावंदा दुआ करें। तूने बताया सिखाया कि दुआ करने से हर तरह की मुश्किल परेशानियाँ, अबलीसी चालाकी, मकारियाँ रद्द व फेल हो जाती हैं और नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं, और तेरा पाक रूह मत रहनुमाई करता खुदावंदा। और दुआ के सबब से खुदावंदा हमारा राब्ता तेरे साथ मजबूत हो जाता है, बशर्त कि हम रूह और सच्चाई से तेरे साथ लिपटे रहे खुदावंदा। और शुक्रगुजार हूँ खुदावंदा कि तूने हम सब की बड़ी मदद, बड़ी सहायता की, और हमें इब्लीस शैतान से हमेशा महफूज रखना। हम यूँ ही वफ़ादारी से तेरे साथ चलते रहे, देखी अनदेखी तासीरों को इस चर्च से दूर रखना खुदावंदा। और यूथ के लिए मिन्नत करती हूँ तो इनको बढ़ा खुदावंदा, हिम्मत ताकत दे, तेरा पाक रूह उनकी मत रहनुमाई करे, ये मज़ीद तुझ में बढ़े और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलती रहे। तेरे पास्टर जी के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंदा, जिन्होंने वहाँ पे मैसेज दिया, कलाम सुनाया। खुदावंदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, अपने बंदा की बड़ी मत रहनुमाई करना, और बाकी भी जितने पास्टर साहबान गए हैं उन सब के साथ भी होना, आने जाने में खुदावंदा उनकी बड़ी रहनुमाई करना। जैसे खैरियत से वहाँ पहुँचे हैं, अब खैरियत में अपने घरों में लौट कर तेरी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंदा तूने हमारी आने में भी मत रहनुमाई की, तेरे शुक्रगुजार हैं। इसी तरह खुदावंदा एक एक पे तेरी नज़र करम चाहती हूँ ताकि तुझ में महफूज रहें, तेरा शुक्र अदा करते रहें। खुदावंदा रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ हो, आस पड़ोस के साथ हो, सबके लिए खुदावंदा तेरे बढ़े हुए हाथ को चाहती हूँ।
تو رحم اور ترس کرنا، اپنے میں بڑھنے کا بھاری فضل عطا کرنا خداوندہ۔ اسی طرح ہم تجھ میں مضبوط ہوتے چلے جائیں، تجھ میں بڑھتے چلے جائیں۔ کلیسیا کو برکت دے خداوندہ، اپنے ساتھ وفادار بنا، روح و سچائی سے تیاری بیداری کے ساتھ خداوندہ تیرے گھر میں آئیں، تیرے کلام کو سنیں سمجھیں اس پہ عمل کریں، روح و سچائی سے تیری عبادت کریں، تیرے کلام کو سنیں سمجھیں اس پہ عمل کریں، تیری بتائی سیدھی سچی راہوں پر چلیں خداوندہ۔ تو ہماری کانٹ چانٹ کر تاکہ تیری مرضی کے مطابق ہم چلتے رہیں خداوندہ۔ تو بھلا ہے، بھلائی کرتا، تیرا شکر کرتی ہوں۔ تو ہماری سپر ہے، ہماری ڈھال ہے، ہمارے چھپنے کی جگہ، ہمارا محکم قلعہ، تیرا شکر کرتی ہوں۔ تیرے پاک روح کے لیے شکر گزار ہوں جو تو نے دوسرا مددگار بھیجا، ہم اس کی مدد رہنمائی میں مزید تیرے ساتھ منسلک ہوتے چلے جائیں خداوندہ۔ شکر گزار ہوں تیرے پاک روح کے لیے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد رہنمائی کرتا ہے، تیرا شکر کرتی ہوں۔ اور خداوندہ اپنے بیٹے کے لیے بھی شکر گزار ہوں خداوندہ، تو ہر طرح سے اس کی مدد حفاظت کرتا، آنے جانے میں خداوندہ برے لوگوں سے محفوظ رکھنا، صحت مند توانا رہے، تیری خدمت کرتا رہے خداوندہ، تیرا قوی ہاتھ اس پہ رہے خداوندہ۔ اس طرح کلیسیا کے ایک خاندان کے لیے خداوندہ تیرا بڑا ہو وہ ہاتھ چاہتی ہوں خداوندہ، تو ان کو اپنے ساتھ وفادار بنا، ہر طرح کی سستی کاہلی لاپرواہی خداوندہ جاتی رہے، تیری بیداری سے تیرے گھر میں آئے خداوندہ۔ اور اسی طرح سنڈے کی عبادت کے لیے منت کرتی ہوں، جو بچوں نے خداوندہ پروگرام بنایا ہے تو ان کی بڑی رہنمائی کرنا، ساز بجانے والوں کی خداوندہ، ساؤنڈ سسٹم کے لیے جو بچہ چلاتا ہے اس کی مت رہنمائی کرنا، تیرا کبھی ہاتھ اس پہ رہے خداوندہ۔ اور خداوندہ سنڈے کی عبادت کے لیے منت کرتی ہوں خداوندہ، تو اپنی بندی کو کثرت سے استعمال کرنا اور تیرا کلام زندگیوں میں کام کرنے والا ہو، جڑ پکڑنے والا ہو، اور خداوندہ تیرے آ جانے سے، تیرے کلام کے سبب سے جوئے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح تو کثرت سے استعمال کرنا، سنڈے کی عبادت ببرکت ہو، برونق ہو، اور ایک زندگی پہ تیرا ہاتھ رہے خداوندہ۔ تو اپنے گھر میں سب کو آنے کی بھاری توفیق بخشنا خداوندہ، کوئی بھی جان اپنے گھر میں نہ رہے، وہ خداوندہ کسی انسان کا نہیں، تیرا کام سمجھتے ہوئے تیرے گھر میں وفاداری سے آنے والے ہوں۔ اور خداوندہ ایک زندگی پہ تو اپنی نظر کرم کرنا خداوندہ، ہر ضرورت کو پورا کرنا، تیری دی ہوئی نعمتوں برکتوں کے لیے شکر گزار ہوں، ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، تیرا شکر کرتی ہوں خداوندہ۔ بڑی رہنمائی کرنا خداوندہ، اور خداوندہ جو کچھ کہنا مانگنا بھول گئی ہوں تو جانتا ہے، بخش دینا خداوندہ۔ اور خاص کر ایک بار پھر منت کرتی ہوں اپنے لیے کہ تو نے مجھے اپنے نام جلال کے لیے آج بولنے میں ہمت طاقت بخشی، موقع بخشا، دل کی گہرائیوں شکر گزار ہوں، یوں ہی موقع فراہم کرتا رہا اور میں تیری شکر گزاری کرتی رہوں اور وفاداری سے تیرے ساتھ چلتی رہوں خداوندہ۔ میرے گھرانے پہ تیری نظر کرم چاہتی ہوں، تیرا پیار بھرا ہاتھ چاہتی ہوں، یوں یہ بچے سارے مل کر تیرے گھر کی خدمت کرتے رہیں، تجھ سے برکتیں پاتے رہیں، ان پہ تیرا کبھی ہاتھ بڑا رہے۔ خاص کر منت کرتی ہوں برے لوگوں سے انہیں محفوظ رکھنا خداوندہ، ہر طرح سے ان کی مدد حفاظت کرنا خداوندہ۔ عرض اور منت کو سن قبول کر مانگتی ہوں مسیح کے نام سے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح معاف کرتا ہے تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، خدا جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔